کیا چاند کبھی نہیں نکلے گا؟ وہ اپنے مخصوص انداز میں بولی۔ تم فوما کو چاہتی ہو نعمہ؟ میں نے براہ راست کہا اور وہ چلتے چلتے رک گئی۔ وہی کیفیت طاری ہو گئی تھی اس پر جس کو میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ چاند کیوں نہیں نکلا؟ وہ بے چینی سے بولی۔ تم نے فوما کو اپنے ہاتھوں سے زہر دیا تھا، میں نے کہا، اور اس کے انداز میں کرب پیدا ہو گیا۔ وہ سمندر میں ڈوب گیا ہے، چاند اب سمندر میں چمکتا ہے، وہ کبھی نہیں نکلے گا، کبھی نہیں نکلے گا۔ فوما تمہارا محبوب تھا، وہ تم سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس شراب میں زہر تھا جو تم نے فوما کو پلائے تھے، لیکن میرا خیال ہے تم اس سے بے خبر تھے۔ فوما زندہ ہے۔ فوما زندہ ہے؟ کیا تم اس سے ملو گی؟ میں نے کہا، اور نعمہ نے ایک زوردار چیخ ماری اور پھر وہ مجھ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ وہ گر رہی ہے، تب میں نے اسے بازو میں اٹھایا اور تیزی سے فوما کے مکان کی طرف چل پڑا۔ فوما بے قراری سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ بے ہوش نعمہ کو دیکھ کر اس پر سکتہ طاری ہو گیا، پھر اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ پھر وہ نعمہ کے قریب آ گیا۔ خواہ یہ بے قصور ہے ثبوتا، اس کے چہرے کی معصومیت دیکھو، وہ گلگیر لہجہ میں بولا۔ شمانہ اس کے نزدیک کھڑی ہوئی تھی۔ مگر اسے کیا ہو گیا؟ میں نے تمہارا نام لیا تھا، اسے بتایا تھا کہ تم زندہ ہو، یہ بے ہوش ہو گئی۔ مجھے یقین ہے یہ بے قصور ہے، فوما نے پھر کہا۔ کیا تمہارے خیال میں نے کوئی قصور کیا شمانہ؟ میں نے اچانک شمانہ سے پوچھا اور وہ جو اس منظر میں کھوئی ہوئی تھی چونک پڑی۔ تم نے؟ میں نہیں سمجھی، وہ بکھلائے ہوئے انداز میں بولی۔ اگر میں نے کوئی قصور نہیں کیا تو تم میرے ساتھ ساحل پر کیوں نہیں چلتی؟ میں نے کہا، اور فوما جذباتی کشمکش کا شکار ہونے کے باوجود ہنس پڑا۔ شمانہ بھی میری شرارت سمجھ گئی تھی، اس کے ہونٹوں پر شرمگی مسکراہٹ پھیل گئی اور میں نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال دیا۔ تب ہم دونوں ساحل کی ٹھنڈی ریت کی جانب چل دیے۔ ریت کا سینہ ہم دونوں کو ہی بہت پسند تھا۔ دوسری صبح میں اور شمانہ مکان میں واپس پہنچے۔ فوما ہمیں جاگتا ہوا ہی ملا تھا، اس کے چہرے میں نمایاں تبدیلی تھی اور وہ مسرت سے جگمگا رہا تھا۔ وہ بڑی محبت سے مجھ سے لپٹ گیا۔ تو نے میرے اوپر اتنے احسان کیے ثبوتا کہ ان کا تصور کر کے بوکھلا جاتا ہوں۔ سوچتا ہوں کہ اگر مجھے میرا سب کچھ واپس مل گیا تو میں تیرے احسانات کے صلے میں تجھے کیا دوں گا؟ دوستی تمام چیزوں سے بڑی ہوتی ہے فوما۔ ہاں، تو آسمان ہے، وسیع اور بے کرا، تو لوگوں کو صرف دے سکتا ہے، کوئی تجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ نعمہ کی کیا کیفیت ہے؟ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، ہم لوگوں سے یاد ہیں؟ ہاں، اور تمہارا نام لے کر وہ جذبات سے خوش ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے وہ بھی تمہارے احسانات کا صلہ دینے سے قاصر ہے، فوما نے جواب دیا۔ میں بہت بڑا سودے باز ہوں فوما، نقصان کا سودا کبھی نہیں کرتا۔ میں جانتا تھا کہ میں تیرے لیے وہ سب کچھ ضرور کروں گا جو تو چاہتا ہے۔ میں تیری بستیوں کو پھر سے آباد کر دوں گا اور اس کے لیے میں نے پورے خلوص سے کام کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سو میں نے سوچا جب محنت کرنی ہے تو معاوضہ پیشگی کیوں نہ وصول کر لیا جائے۔ تیری بستی سے میں نے پورا معاوضہ وصول کر لیا ہے اور اب تیرے اوپر میرا کوئی قرض نہیں ہے۔ معاوضہ؟ میں نہیں سمجھا ثبوتا، فوما نے کہا۔ شمانہ، میں نے شمانہ کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ میری تمام محنت کا صلہ ہے جو میں کر چکا ہوں اور آئندہ کروں گا، میں نے جواب دیا۔ اور فوما نے مسکراتے ہوئے شمانہ کی طرف دیکھا۔ اگر یہ بات ہے تو میری بستی کی اس لڑکی نے میرے اوپر بڑا احسان کیا ہے، اس نے میرا بوجھ بانٹ لیا ہے اور اب تمہیں ناشتہ بھی کرائے گی، میں نے کہا، اور فوما ہنسنے لگا۔ شمانہ ناشتہ تیار کرنے چلی گئی تھی۔ ناشتے کے بعد اس نے کہا، چونکہ نعمہ ابھی سو رہی ہے اس لیے میں دولابہ کے پاس جانا چاہتی ہوں، کیا میں تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس چلی جاؤں؟ وہ یہاں آنے سے بہت خوش ہے لیکن تنہائی محسوس کرے گی۔ ضرور شمانہ، بے فکر ہو، نعمہ کو ناشتہ دے دیا جائے گا، فوما نے کہا، اور شمانہ چلے گی۔ تب میں اور فوما ایک جگہ جا بیٹھے اور پھر فوما مجھ سے سفر کے حالات پوچھنے لگا۔ سفر کی ایک دلچسپ داستان ہے فوما، جو میں نے وقت نہ ملنے کی وجہ سے نہ تو تجھے سنائی اور نہ حکیم حاکو کو۔ اوہ، کوئی خاص واقعہ پیش آیا تھا؟ ہاں، اطلاع کے طور پر مانگا جزیرہ مکمل طور پر تمہارے دشمنوں کے قبضے میں ہے، وہاں ان کی پسند کی حکومت تھی، لیکن میں نے تارس کو قتل کر دیا ہے اور شاید آج وہاں کوئی اور حکمران نہیں ہے۔ میں نے مانگا کی پوری کہانی سنا دی اور پھر یہ بھی بتایا کہ کس طرح نعمہ کو لایا۔ فوما بے حد متاثر نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، سارے کام ہی تیرے مرہون منت ہیں، اگر تو وہاں نہ جاتا تو پھر کیسے یہ سب کچھ ممکن تھا؟ لیکن فوما خاموش ہو گیا۔ لیکن کیا فوما؟ کچھ نہیں، یہ ساری چیزیں متوقع ہیں، ہمیں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ زردرو اپنی کوششوں میں مصروف ہیں، چبالا کا زوال بہت جلد آ جاتا۔ اول تو وہ ان کے اشاروں پر ناچنے والوں میں سے ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ مکمل طور پر با اختیار ہو جاتے تو حکومت پر شبالہ کا وجود قبول نہ کرتے۔ ممکن ہے، میں نے گردن ہلائی، ویسے شبالہ کچھ نہ کچھ کارروائی ضرور کرے گا۔ ممکن ہے اس کے جہاز سکائی کے لیے چل پڑے ہوں اور کچھ عرصہ میں یہاں پہنچنے والے ہوں۔ میرا مطلب ہے تم لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے، لیکن آنے دو، ہم بھی اپنی کارروائیوں کا آغاز سکائی ہی سے کریں گے، فوما نے پرخیال انداز میں کہا۔ سردروؤں کے مقامی بستی کا کیا حال ہے؟ میں نے پوچھا۔ سخت بے چینی پھیلی ہوئی ہے، فوما بے اختیار مسکرا پڑا۔ کیا مطلب؟ 10-10 12-12 افراد کی ٹولیاں، چھوٹی کشتیاں ہیں، اعلیٰ پیمانے پر ماہی گیری کرنے لگی ہیں،
लेकिन इन्हें नजदीक आने की जरूरत नहीं हुई। और फिर हकीम हाकू ने भी आने वालों को हदायत कर दी कि किश्तियों को ज्यादा करीब न आने दिया जाए। लेकिन नर्म रवैये वाले जालसाजों ने आज तक किसी से तारुज नहीं किया। हाँ, वो हमारे गश्त करने वाले लोगों से घुलने मिलने की कोशिशों में बराबर मसरूफ है। कोब, क्या इनके जहाजों की आमदोरफ्त का रास्ता खुला हुआ है? हाँ, अभी तक इस तरह कोई पाबंदी नहीं लगाएगी। आज से लगा दी जाएगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं खुद यही सोच रहा था, लेकिन सारी कार्रवाई मैंने तुम्हारी आमद तक मुलतवी कर दी थी। आज से हम इनके ये रास्ते बंद कर देंगे। फोमा ने जवाब दिया। मुमकिन है ज़िरदास के जहाज से होने वाली कार्रवाई की इत्तला भी पहुंच गई हो। हाँ, मुमकिन है, फोमा ने जवाब दिया और फिर बोला, बहरहाल आज की कार्रवाई के बारे में क्या ख्याल है? मैं हाकू का मुंतजिर हूँ, वो आ जाए तो फैसला कर लिया जाएगा। वैसे तुमने शिकाया के हालात का जायजा लिया होगा, पा मेरे बारे में क्या तासुर है? मैंने हर जगह तुम्हारे परस्तार पाए हैं, खासतौर पर शिकाया में लोग ज्यादा खुलकर तुम्हारी हमायत का ऐलान करते हैं। मांगा बस्ती में अलबत्ता मैंने महसूस किया कि मकामी लोग जरदरू लोगों के ज़ेरे असर हैं। मौजूदा हालात के बारे में गो मुझे ज्यादा मालूम नहीं, लेकिन मैंने महसूस किया था फोमा के वो लोग जरदरू लोगों के तसल्लुत से आज़ाद नहीं है। बहरसूरत फोमा, मुझे यकीन है कि तुम थोड़ी सी काविशों के बाद अपनी खोई हुई हुकूमत हासिल कर लोगे, लेकिन चंद सवालात मेरे ज़हन में सर उभारते हैं। वो क्या सबूता? फोमा ने पूछा। तुम अपनी हैसियत हुकूमत हासिल कर लेने के बाद इन लोगों के साथ क्या सलूक करोगे? जरदरुओं के साथ? हाँ सबूता, इन लोगों ने मुझे जिन हालात में पहुंचा दिया, इससे तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। मुझे बताओ, अगर मैं अपनी हैसियत में वापस आ जाऊं तो मुझे इनके साथ क्या सलूक करना चाहिए? मैं तुम्हारे अल्फाज सुनना चाहता हूं सबूता, फोमा ने मुझसे कहा। दरअसल फोमा, मुझे थोड़ी सी हमदर्दी इन लोगों से भी है। मैंने साफ लहजे में कहा। जाहिर है प्रोफेसर, मैं किसी के जेर तहत तो था नहीं। जो कुछ मैं कर रहा था वो तो मेरी जाती दिलचस्पी की बात थी, वरना फोमा या कोई और मुझे काम के लिए कौन मजबूर कर सकता था। बाकी रही इन लोगों की बात है, तो प्रोफेसर, मुझे पोसीता के अल्फाज याद थे। उसने कहा था प्रोफेसर कि इनकी तो मैं भी कायल नहीं हूं किसी की जमीन पर कब्जा करके इसे बेदखल कर दिया जाए, लेकिन जमीन पर थोड़ी सी हैसियत हम लोगों की भी होनी चाहिए। और पोस्तिया की यह बात मुझे मुतासर कर गई थी। मैंने सवालिया अंदाज में फोमा की तरफ देखा। फोमा किसी सोच में डूब गया था, फिर उसने गर्दन हिलाई और बोला, इस बात के बारे में मैंने भी अभी तक बहरसूरत कोई फैसला नहीं किया, लेकिन सबूता तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मेरा अपना ख्याल है फोमा, इनमें से सिर्फ इन सरकश लोगों को कत्ल कर दिया जाए जो साजिश के बानी हैं, जो यहाँ अपनी हुकूमत चाहते हैं। बाकी रहा इन तमाम लोगों का मसला, तो मेरी राय है एक जजीरा बल्कि एक बड़े जजीरे का एक हिस्सा इन लोगों के लिए मखसूस कर दिया जाए, और बाकी 3 हिस्सों में तुम्हारी भरपूर कुव्वत रहनी चाहिए ताकि इन पर निगाह रखी जा सके। जजीरे का वो हिस्सा जो इनके लिए मखसूस किया जाए, इसमें इनकी जिंदगी गुजारने की हर सहूलत मौजूद होनी चाहिए। इन्हें हुक्म दिया जाए कि वो अपनी हर तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। इन्हें इस हिस्से पर मुकम्मल आज़ादी दे दी जानी चाहिए, चाहे हिस्से पर वो काश्तकारी करें या कुछ और करें, या जिंदगी गुजारने के लिए हर वो तरीका जो उन्हें पसंद हो। लेकिन जरूरी होगा कि इनकी हर नकलो हमल पर नजर रखी जाए। अगर इनमें कुछ और लोग भी आकर शामिल हो जाते हैं तो एक हद तक बर्दाश्त कर लिया जाए। बाकी यूं समझो कि इनकी एक नो आबादी बना दी जाए ताकि वो जिंदगी बसर कर सके, लेकिन हुकूमत के दस्ते नगर रह कर ही। मैंने कहा। फोमा खासी हद तक मुतासर नजर आ रहा था, शायद उसे मेरी तजवीज़ पसंद आई थी। फिर वो बोला, लेकिन सबूता हम इस तजवीज़ को पाया तकमील तक कैसे पहुंचा सकते हैं? ये काम करना कुछ ज़्यादा मुश्किल ना होगा फोमा। ये काम हम उनको मजबूर करके भी ले सकते हैं और इन पर कुछ जिम्मेदारियां भी डाल सकते हैं। हाँ, अगर वो सरकशी की कोशिश करें तो इन पर फौज कशी करके इनकी बगावत को कुचल दिया जाए। फोमा गौर से मेरी तजावीज़ सुनता रहा, फिर उसने गर्दन हिलाकर कहा, खूब ख्याल है सबूता, मैं भी इस बात का कायल नहीं हूं कि दुश्मनों पर जमीन तंग कर दी जाए। इन्हें भी जिंदा रहने का हक मुकम्मल तौर पर हासिल है और मैं इस हक को तस्लीम करता हूं, लेकिन शर्त यही है कि अगर उन्होंने कोई साजिश की या सरकशी की कोशिश की तो फिर इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो मैंने कहा, और मैं फोमा की इस तजवीज़ से मुत्तफिक था। हाँ, तुम इन्हें ये इतला दे सकते हो कि इन्हें इनकी सरकशी की इतनी ज़बरदस्त सजा दी जाए कि आइंदा वो बगावत करना भूल जाए। मैंने कहा और फोमा ने गर्दन हिला दी। फिर संजीदगी से कुछ सोचता हुआ बोला, दर हकीकत तूने बहुत अच्छी बात कही है सबूता, सिर्फ इसलिए नहीं कि तू मेरी मदद कर रहा है तो मैं तेरी यह बात कबूल कर लूँ, बल्कि मैंने बारहा सोचा है कि अगर मेरी हुकूमत यहाँ कायम होती तो मैं इन लोगों के साथ क्या सलूक करता। जाहिर है बेशुमार इंसानों को तहस नहस तो नहीं किया जा सकता। इसके अलावा ये लोग भी जिंदगी गुजारने का हक रखते हैं और जरूरी नहीं है कि इनमें से हर शख्स गलत हो। बेशक मैंने हिदायत की, तो मुतमईन रहे सबूता, तूने जो कुछ कहा है वो मुझे याद है। अगर मुझे अपनी हैसियत दोबारा हासिल हो गई तो मैं ऐसा ही करूंगा और हर सिलसिले में तेरा मशवरा शामिल करूंगा। तेरी हैसियत जो कुछ मेरी निगाह में है सबूता, चाहे तू इससे वाकिफ नहीं है। ऐसी बात नहीं है फोमा, लेकिन मुझे खुशी है कि तूने मेरी बात मान ली, मैंने मुतमईन अंदाज में कहा। हम लोग बैठे गुफ्तगू करते रहे। थोड़ी देर के बाद हकीम हाकू आ गया।
हम दोनों को देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूब, क्या मेरी आमद से पहले कार्रवाई शुरू हो गई? नहीं हकीम हाकू, हम कुछ दूसरी बातें कर रहे थे, फोमा ने जवाब दिया। उसने सिलसिले में हकीम हाकू को कोई तफसील नहीं बताई थी, इसलिए मैंने भी खामोशी ही इख्तियार कर ली। इसके बाद हम तीनों सर जोड़ कर बैठ गए। मसला यह था कि अब क्या किया जाए। दोनों ने सवाल करने के बाद मेरी तरफ देखा और फोमा ने मुस्कुराते हुए कहा, बाजी सबूता, तेरे जाने के बाद हमने तेरे बारे में बहुत सी गुफ्तगू की, तो क्या इस गुफ्तगू के बारे में तुम मुझे ना बताओगे? मैंने फोमा से पूछा। दरअसल सबूता, हकीम हाकू का ख्याल है कि तेरी पुरस्रार कुव्वतें सिर्फ जिस्मानी हद तक महदूद नहीं है, बल्कि तू जिस्मानी तौर पर ताकतवर ही है, बल्कि ज़हनी तौर पर भी बहुत ताकतवर है, और जो भी कदम उठाता है इसमें खास मसलहत और फिर पूरी कुव्वत होती है। चुनांचे इस सिलसिले में तेरी राय सबसे मुकद्दम है। हम तेरी राय को सबसे बड़ी हैसियत देते हैं। हमें बता, हमें क्या करना चाहिए? बात यह है फोमा कि मैं तुम्हारे ज़ाती मामलात में कोई मुदाखलत नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारे सिलसिले में इतनी दिलचस्पी महसूस करता हूँ जितनी कि तुम खुद। चुनांचे मेरा ख्याल है कि तुम अपनी असली हैसियत में जाहिर हो जाओ। ओह, फोमा ने मानी के अंदाज में हकीम हाकू की तरफ देखा। लेकिन किस तरह? हकीम हाकू ने पूछा। आज की मीटिंग में तुम तमाम बस्तियों के सरदारों को जमा करो और हकीम हाकू, तुम इन्हें यह बताओ कि आज जिस सिलसिले में बुलाया गया है उन्हें उसी का इंकशाफ किया जाने वाला है। जहां यह मीटिंग होगी वहां फोमा भी मौजूद होगा, और हकीम हाकू, इस मीटिंग के लिए तुम्हारा मकान ही सबसे बेहतर है। तुम इन्हें मुख्तसर हालात बताते हुए इनका जायजा लो कि वो इस सिलसिले में क्या मुनासिब समझते हैं, और उसके बाद इन पर इजहार कर दो कि फोमा इनके दरमियान मौजूद है और वो तनहा नहीं है। अगर वो काम करेंगे तो फोमा की सरकर्दगी में तब फोमा को इनके सामने पेश करो ताकि इनके हौसले बढ़ जाए, और इसके बाद इन्हें इनके इलाकों में रवाना कर दो और इनसे कहो कि वह अपने तौर पर कार्रवाइयाँ करें। जहाँ तक सकाई के लिए काम करने का ताल्लुक है तो इसके लिए मेरा मशवरा ये है कि जिस वक्त सरदारों से बातचीत हो जाएगी तो इनसे कहा जाए कि अपने थोड़े थोड़े आदमी इब्तदाई तौर पर यहाँ भेज दें और उसके बाद यहाँ कार्रवाई शुरू कर दी जाए। मुनासिब ख्याल है सबूता, हम तेरी ज़हनी कुव्वतों के मोतरिफ हैं। फोमा और हकीम हाकू ने तारीफी अंदाज में कहा, लेकिन इससे क्या कोई खास असर पड़ेगा? हाँ, दरअसल मेरा मकसद ये था कि सबसे पहले हम सकाई पर इन ज़रज़रूर लोगों की बस्ती पर कब्जा कर लें और उसके बाद कोई दूसरा अमल करें। दूसरे अमल से तुम्हारी क्या मुराद है सबूता? फोमा ने पूछा। दरअसल मेरी तुमसे पहले भी बात हुई थी फोमा कि जब हमने पहला कदम सकाई से उठाया है तो मेरा ख्याल है कि हमारे बाकी काम भी सकाई ही में होने चाहिए। गोया सकाई हमारा हेडक्वार्टर है, यहाँ से हम अपनी कार्रवाई का आगाज करें। इसके अलावा सरदार अपने अपने इलाके में इंतहाई जहानत और महारत से काम शुरू करते। इसके अलावा मेरे जहन में कुछ और तजावीज़ हैं जिन्हें अगर तुम चाहो तो मैं बता दूँ। हाँ, अभी बता दो, ज़रूर। हकीम हाकू ने दिलचस्पी से कहा। फोमा भी इस गुफ्तगू में पूरी दिलचस्पी ले रहा था। सकाई के रहमानों का राब्ता, मेरे कहने का मतलब है ज़रज़रूर लोगों का राब्ता जहाज़ों के जरिए ही दूसरे इलाकों से रहता है ना? मैंने पूछा। हाँ, जाहिर है, गोया यहाँ से लोग जाते रहते हैं और वहाँ से आते रहते हैं। यकीनन, हकीम हाकू ने कहा। तो चंद जहाज, मेरा मतलब है सकाई पर कब्जा करने के बाद दूर दूर तक गश्त पर फैला दो। जो ज़रज़रूर बाहर से आए इन्हें आने दिया जाए, और फिर जो कुछ भी मालूमात या जो खबर वो यहाँ पर लेकर आए वो खबर इनसे बआसानी मालूम की जा सकती है। इनको फिर हमेशा के लिए यहाँ बंद कर दिया जाए। इस तरह इनकी कार्रवाई कमज़ोर भी पड़ जाएगी, और जब सरदार अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लें तो फिर एक बड़े हमले का ऐलान कर दिया जाए। फोमा शबाला को पैगाम भेजे कि चूंकि वो खुद मौजूद है इसलिए शबाला खुद को फोमा की खिदमत में पेश करते। इसके बाद हम इन ज़रज़रूओं का रद्द अमल देख लेंगे। हम ये भी देख लेंगे कि वो खुद किस हद तक कार्रवाई करते हैं, और फिर हम इस कार्रवाई से निमटने का तरीका भी सोच लेंगे। बहुत मुनासिब तजवीज़ है, हकीम हाकू ने मुतासर लहजे में कहा। मैंने कहा था ना हकीम हाकू, फोमा बोला। सबूता जो कुछ बताएगा वो इंतहाई जामे और मुकम्मल होगा। तो ठीक है, फिर कार्रवाई की इब्तिदा यहाँ से शुरू की जाने की मंजूरी दे दी जाती है? हकीम हाकू ने पूछा। हाँ हकीम हाकू, और इस सिलसिले में चंसुरी अमूर का बंदोबस्त भी कर लो। मसलन ये कि जिस इमारत में तुम तमाम सरदारों को जमा करो, इस इमारत के बारे में ये मालूमात हासिल कर लो कि इस इमारत से कोई बात बाहर तो नहीं जा सकती। हम हर तरह होशियार रहना चाहते हैं। बहुत मुनासिब है, मैं इस बात की मुकम्मल तौर पर कोशिश करूंगा। हर काम नहायत इत्मीनान और तसल्ली से होगा। हकीम हाकू ने जवाब दिया। तो ठीक है, थोड़ी देर के बाद फोमा को वहां पहुंचा दिया जाए। मैंने कहा और हम तीनों उस बात पर मुत्तफिक हो गए। हकीम हाकू वहां से चला गया। फोमा बड़ी दिलचस्प निगाहों से मुझे देख रहा था। फिर उसने मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा, दर हकीकत तुम मेरे लिए किस्मत का बहुत बड़ा इनाम है सबूता। और फोमा, इस बात को छोड़ो, जाओ देखो तुम्हारी महबूबा जाग गई या नहीं। मैंने हंसते हुए कहा। और हाँ, नामा की नींद पूरी होगी। फोमा ने कहा और फिर मुआज़रत आमेज़ अंदाज में मुझे देखता हुआ
बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद फोमा और नामा इसी कमरे में आ गए जहां मैं मौजूद था। नामा दरवाजे में टिटकी चंद साथ मुझे देखती रही और फिर मेरे कदमों में झुक गई। नामा की आंखें मुसलसल आंसू बहा रही थी। तब मैंने उसे बाजुओं से पकड़कर उठा लिया। सबूता, मैं अब ठीक हो गई हूं ना? सबूता, तू मुझे याद है, तूने मेरे लिए जो कुछ किया है, मैं जिंदगी भर तेरे एहसान से भरी उलसिम्मा ना हो सकूंगी। खुदाई नामा, तुम दोनों मिल गए, सबसे खुशी की बड़ी बात यही है। सबसे बड़ी बात यह है कि फोमा के दिल से वो ख्याल निकल गया जो उसके ज़हन में परविश पा रहा था, जो तुम्हारे खिलाफ था। फोमा, क्या तूने नामा को इस बारे में बताया? हाँ सबूता, मैंने इससे पूछा था, लेकिन नामा इस बात से बेखबर थी कि शराब में जहर है। ये शराब इसे दूसरे जराए से मुहैया की गई थी, यानी इन जराए से जहां से शराब मिलती थी, लेकिन किसी तरह इसमें जहर शामिल कर दिया गया। मेरी मौत के बाद नामा नीम थीवानी होगी। इसे ये भी पता चल गया था कि मेरी मौत इसी जहर की वजह से हुई है। बहरसूरत जो कुछ भी होता है ठीक ही होता है, हमें इसलिए ज्यादा परेशान या फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। तुम दोनों मिल गए, मुझे इंतहाई खुशी है, और मैं इस वक्त और ज्यादा खुश होऊंगा जब तुम्हारी हुकूमत तुम्हें वापस मिल जाएगी। सबूता, बस तेरा शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है। फोमा ने जज्बाती लहजे में कहा। अल्फाज नहीं है तो शुक्रिया अदा करने की क्या जरूरत है? बस अब तुम जाओ, जरनामा को नाश्ता वगैरह करवा दो। मुमकिन है हकीम हाकू की तरफ से बुलावा आ जाए। मैं शुमाना और दुलाबा को तलाश करके यहाँ भेजे देता हूँ। अब ये तीनों औरतें यकजा रह सकती हैं, मैंने कहा, और फोमा ने गर्दन हिला दी। तब मैं बाहर निकल आया। शुमाना हकीम हाकू के मकान में दुलाबा के पास मौजूद थी। दोनों खुश नजर आ रही थी। शायद शुमाना दुलाबा को अपनी जिंदगी के बारे में बता रही थी। दुलाबा सख्त हैरान थी। मुझे देखकर दोनों खामोश हो गई। फिर दुलाबा के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने हंसते हुए मुझसे कहा, तुम दोनों की जिंदगी के हालात बेहद अजीब, बेहद दिलकश और बेहद खूबसूरत हैं। शुमाना ने मुझे इनके बारे में सारी तफसीलात बता दी हैं। मैं जानता हूँ दुलाबा, औरतें जहाँ बैठती हैं यही गुफ्तगू करती हैं। मैंने हंसते हुए कहा और दोनों औरतें हंसने लगी। तब मैंने उनसे कहा कि वो उठे और मेरे साथ चले। दुलाबा तैयार हो गई थी। बिशक देवदास के साथ मसरूफ था, इसलिए उससे कुछ पूछने की जरूरत तो नहीं थी, और जाहिर है बिशक को मेरे ऊपर पूरे तौर से एतमाद था। सो मैं इन दोनों औरतों को लेकर समंदर के किनारे बने हुए लकड़ी के उस मकान में पहुंच गया जहाँ फोमा और नामा मौजूद थे। फोमा दूसरे कमरे में चला गया। उसे नामा को इस बारे में सब कुछ बता दिया था। चुनांचे शुमाना और दुलाबा नामा के पास पहुंच गई, और थोड़ी देर के बाद हकीम हाकू का पैगाम हमारे पास पहुंच गया। तब मैं फोमा को लेकर हकीम हाकू के मकान की जानिब चल पड़ा। फोमा को इस अंदाज में चादर उड़ा दी गई थी जैसे बीमारों को उड़ा दी जाती है। इस तरह फोमा दूसरे लोगों की निगाहों से पोशीदा भी हो गया था। हकीम हाकू का मकान मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया था। उसने मकान के अकबी दरवाजे पर हमारा इस्तकबाल किया और फिर फोमा को एक अकबी कमरे में पहुंचा दिया। फिर उसने आहिस्ता से गर्दन हिलाई और मुझसे कहा, सबूता, अब मैं तमाम सरदारों को यहाँ ले आता हूँ। थोड़ी देर के बाद एक बड़े हाल में तमाम सरदार जमा हो गए। बहुत से लोगों को मकान के चारों तरफ फैला दिया गया था और हदायत कर दी गई थी कि कोई मकान के करीब न भटकने पाए। सरदारों के चेहरे पर तजस्सुस था। बहुत सी निगाहों में मुझे देखकर हैरत उभर आई थी। तब हकीम हाकू ने जलसे की कार्रवाई का आगाज किया। सरदारों, पहले मैं अपने ऊपर तुम्हारे एतमाद का खलूस दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तुमने मेरी दावत को लब्बैक कहा और ये जाने बूझे बगैर तवील सफर करके यहाँ आए कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। सरदारों, मेरी ख्वाहिश है कि तुम सब मुत्तफिका तौर पर किसी एक सरदार को अपना बड़ा बना लो ताकि वो बहस और गुफ्तगू में हिस्सा लेकर तुम्हारी जानिब से सवालात करे कि यही बेहतर तरीका है। सरदारों में चहमगोइयां होने लगीं। फिर मुत्तफिका तौर पर ओहारा को सरबराह बना लिया गया। एक मुअम्मर और ज़हीन सरदार था। इसका ऐलान किया गया और फिर ओहारा उठ खड़ा हुआ। हकीम और दानिशवर हाकू, तू ज़ईफ़ुल उम्र है और हम में से कोई ऐसा नहीं है जो ये न जानता हो कि तू हमारे मरहूम सरदार फोमा का जानिसार था और फोमा तेरे ऊपर मुकम्मल एतमाद करता था। फिर तूने हमें आवाज़ दी तो फोमा का नाम लेकर। तूने हमें यह पैगाम नहीं भिजवाया था कि फोमा के नाम पर इलाके की बका के लिए हम तेरे पास पहुंच जाए। हाँ, मेरा पैगाम यही था और फोमा की कसम गलत नहीं था। हकीम हाकू ने कहा, तब भरोसा कर, हमने यहाँ आकर तेरे ऊपर एहसान नहीं किया है, बल्कि तेरे शुक्र गुजार हैं कि जो बात हम सब इनफरादी तौर पर सोच रहे हैं और इसे करना चाहते हैं तो उन्हें अमली तौर पर करती। बिलाशुबा इस बात की जरूरत थी कि हम सब एक महवर पर जमा होकर कोई फैसला कर सकें और कोई अच्छा इकदाम कर सकें। मुनासिब बात है। बहुत से लोगों ने तायद की। तो फिर हकीम हाकू बता, तूने हमें क्यों तलब किया था? मैं वही बताने जा रहा हूँ दोस्तों। जैसा कि तुम्हें मालूम है कि फोमा की जुदाई के बाद इस बात के इम्कानात कभी तर हो गए थे कि वो हम पर काबू पा ले। बेशक ये इम्कानात कभी तर हो गए थे और इसके लिए जरूरत इस बात की थी कि हम सब मिलकर कुछ सोचें। हाकू ने कहा, हाँ यकीनन, बस्तियों के हालात इस कदर बिगड़ते जा रहे हैं कि इन्हें संभालना नामुमकिन होता जा रहा है। तो सरदारों, इस सवाल का जवाब इनफरादी होगा। मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम्हारी अपनी बस्तियों में तुम्हारी अपनी क्या हैसियत है?
इस सवाल से तुम्हारा क्या मकसद है हकीम हाकू? तुम अपने तौर पर वही कुव्वत रखते हो, तुम में से कोई ऐसा भी है जो खुद को कमजोर पाता हो? कई बस्तियां हैं हकीम हाकू जहां जर्द रूह हुक्मरानों की मदद से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, और जो वही बस्तियां हैं जहां इन्होंने अपनी पसंद के आदमियों को हुक्मरान बना दिया है। खूब, तुम्हारे अपने आदमियों के जोश व खरोश की क्या कैफियत है? वो सब मजबूत हैं लेकिन जानते हैं कि इनकी तनहा आवाज कोई अहमियत नहीं रखती, सरदार ने जवाब दिया। और ये सूरत हाल जिस कदर खौफनाक है इसका अंदाजा सबको है। यकीनन हम लोग अपने अपने इलाकों में यह बात महसूस कर रहे थे। क्या फोमा की जुदाई हम सब की बदबख्ती न थी? हकीम हाकू ने पूछा। हाँ, फोमा हमारे दरमियान से गया तो हमारी कमर टूट गई, हम सब बेसहारा हो गए। फोमा हमारा अजीम बाप, हमारा मुहाफिज, हमारा रखवाला। ओहारा की आवाज भरा गई। तुम्हें अंदाजा है दोस्तों कि फोमा को जहर देकर हलाक किया गया था? क्या? बहुत सी आवाजें उभरी। हाँ, यह बात कोई नहीं बता सकता था, लेकिन यह बात एक ऐसे शख्स ने बताई जो हम में से नहीं है और जिसका ताल्लुक जर्द फामों से भी नहीं है। और अकलमंदों की निगाहें मेरी जानिब उठ गईं। एक अजनबी की हैसियत से ही मैं इनके सामने था। अजनबी को यह बात कैसे मालूम हुई? ओहारा ने पूछा। यह तशरीह भी कर दी जाएगी। मैं इसे तिचना छोड़कर अब एक दूसरा सवाल करना चाहता हूं, और सवाल यह है, इन हालात में हम क्या कर सकते हैं? हाकू ने कहा।